Morning students. Today we will discuss fourth lesson of the book First Flight, and the lesson is from the diary of Anne Frank. Actually in this chapter you will come to know about a girl whose name is Anne Frank, and before to start theme as well as chapter, I would like to tell you a few lines about Anne Frank. Anne Frank was born on 12 June 1929. Okay, and she died in March or February. Actually, it is not sure whether she died in February or March 1945. Just at the age of 16 years, she died, Anne Frank. And in this chapter, we will come to know about some short and sweet experience of her life that she had described in her biography. This lesson is a part of her autobiography, we can say that, in which she had described so many experiences of her life. So let's start. This lesson is about Anne Frank. She was a German-born Jewish girl. She wrote her diary in hiding with her family. अपने फैमिली मेंबर से छिप करके उसने जो है ये डायरी लिखी थी. At the time, the Second World War was going on. उस समय Second World War चल रहा था और जर्मनी में हिटलर का शासन था. That was a dictator. एक तानाशाही था वो, right? And after the war, युद्ध जब खत्म हुआ, मतलब जब युद्ध खत्म हुआ तो उसकी डेथ भी हो गई थी 1945 में. Her father returned to Amsterdam. This is an island, Amsterdam, to find Anne's diary. Anne की डायरी को लेने के लिए उसके पापा वापस गए वहां पर जब उसकी डेथ के बाद. एक्चुअली किसी को पता नहीं था कि वो डायरी भी लिखती है Anne Frank. It was published under the name of the Diary of a Young Girl. उसकी डायरी को पब्लिश किया गया, काफी फेमस हुई वो. 9th 10th क्लास में एक नॉवल भी था हमारे पास जो सीबीएसई ने इस बार हटा दिया है. इस साल भी नहीं, मतलब इससे लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था. उससे पहले अगर आप होते 10th में तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ता. In her diary, she describes different moments of her life. She also explains her love for her grandmother and her teachers' advice and comments for her. कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एने फ्रैंक ने जो बताया है, वो एक लड़की थी, बहुत फ्रेंड नहीं था उसका कोई, इसलिए उसने डायरी को अपना फ्रेंड बनाया. और भी so many things which are very interesting we will come to know in this chapter. Now we are going to start lesson. So now I request all the students to open the book and listen to me very carefully. So this is our lesson and it starts from here, as you can see, from the diary of Anne Frank, right? And this is a brief character sketch or life sketch about Anne Frank, you can see, and chapter starts from here. Okay, I'm going to start. Please listen to me very carefully. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings. Musings means ideas of a 13-year-old school girl. डायरी लिखना एक अजीब एक्सपीरियंस हो सकता है मेरे जैसे किसी भी इंसान के लिए. उसका रीज़न ये है कि कोई भी इंसान मुझ जैसी 13 साल की लड़की के विचारों में इंटरेस्ट नहीं लेगा. ओह वेल, इट डज़ नॉट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग. मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे मैं लिखने के लिए बनी हूँ. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि जो भी मेरे दिल में है उन्हें मुझे बाहर निकालना चाहिए. मुझे उन्हें एक शाब्दिक रूप प्रदान करना चाहिए, मतलब मुझे शब्दों में उन्हें व्यक्त करना चाहिए. ऐसा मैंने महसूस किया, एने फ्रैंक कह रही है.
पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये एक स्टेटमेंट है। मनुष्य से ज़्यादा पेशेंस जो है एक पेपर में होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बातें, किसी की बातें किसी से कह देता है, लेकिन पेपर किसी से कुछ नहीं कहते, वो शांत रहते हैं। क्वेश्चन भी आएगा एक कि एन ए फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। आई थॉट of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless means with no energy, with no interest, wondering whether to stay in or go out. ये थॉट मेरे दिमाग में जब आया, जब एक दिन मैं घर पर बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। एंड आई फाइनली, और मेरे मन में ये भी था कि मैं घर पे रुकूँ या बाहर चली जाऊँ, मतलब कंफ्यूज थी मैं। दो मन थे मेरे, एक ये थे कि मैं घर पे ही रहूँ और दूसरा ये था कि मैं बाहर घूमने के लिए चले जाऊँ, राइट। आई फाइनली स्टेड देयर वेयर आई वॉज, मैं आखिरकार वहीं रुकी जहाँ मैं थी। एंड ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचते हुए, थिंकिंग, और ये मैं सोचने लग गई, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रेड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा कोई मेरी इस डायरी को पढ़े, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक अच्छा दोस्त ना मिल जाए। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इसमें अधिक फ़र्क भी नहीं होगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब मैं उस पॉइंट की तरफ बढ़ती हूँ जिस पॉइंट ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया डायरी लिखने के लिए। prompted means inspired, प्रेरित किया। I don't have a friend. मैंने डायरी क्यों लिखी? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं था। This was the most important reason behind writing diary for Anne Frank. क्वेश्चन आएगा ये हमारे पास कि किस कारण से एने फ्रैंक ने डायरी लिखनी स्टार्ट करी। नेक्स्ट, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको और क्लियरली बता देती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस संसार में अकेली है। एंड आई एम नॉट, हालांकि मैं अकेली नहीं थी। I have loving parents and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friend, और यहाँ तक कि 30 लोग ऐसे भी थे जीवन में जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती थी। I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. सब कुछ था मेरे पास सिवाय एक ट्रू फ्रेंड के, एक अच्छा दोस्त नहीं था। All I think about when I am with friend is having a good time. मैं ये सोचती थी कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरा टाइम काफ़ी अच्छा होता है। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. We don't seem to be able to get any closer and that is the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. हालांकि इससे पहले मेरे पास थे दोस्त, ग्रुप सर्कल था, एक सर्कल था, लेकिन हम किसी से एक दूसरे से मन की बातें नहीं बताते थे। कॉन्फाइड का मतलब होता है सीक्रेट बात बताना। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और वो जो है, लाइबल का मतलब होता है जिम्मेदार, वो बदलाव के लिए भी जिम्मेदार नहीं थे। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, और एक ये रीज़न है कि मैंने डायरी लिखनी स्टार्ट क्यों करी। टू इंक्रीज द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में अपनी इस लंबे टाइम से इंतज़ार करने वाली इस दोस्त की इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं उस तरीके से अपने विचार इस डायरी में नहीं लिखूंगी जिस तरीके से दूसरे लोग लिखते हैं, साधारण तरीके से। जॉट डाउन का मतलब होता है राइट डाउन। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस डायरी को एक नाम देने जा रही हूँ, किटी।
It means Anne had given her diary a name, Kitty. That was very good. So this is our second part that we are going to start. So students, since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plunge right in. अगर मैं बहुत गहराई से शब्दों को लिखती हूँ तो कोई भी मेरे द्वारा लिखे गए एक भी शब्द को नहीं समझ पाएगा. I would better provide a brief sketch of my life. अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन का बहुत ही कहते हैं ना कि संक्षिप्त वर्णन दूँ. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मुझे ऐसा करना पसंद भी नहीं है. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. सबसे ज़्यादा पूजनीय पिताजी थे जो अब तक मैंने जितने भी फादर देखे अलग अलग बच्चों के, मुझे अपने पिता सबसे अधिक पूजनीय लगे. एंड did not marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं करी जब मेरे फादर 36 साल के नहीं हो गए और मेरी मम्मा जो है वो 25 साल की नहीं हो गई. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany 1926 and I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई I was there in Frankfurt and my father emigrated. Emigrated मतलब विदेश चले जाना. To Holland in 1933. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September while Margot and I were sent to Dachshund to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February. When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मुझे जब ले जाया गया तो ऐसे ले जा कर के टेबल पर रख दिया गया जैसे कि मैं अपनी बहन के लिए उसके जन्मदिन का तोहफा थी. प्लंक डाउन का मतलब होता है पटक देना, रख देना, पटकना इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है. I started right away at the Montessori Nursery School. I stayed until there I was 6. 6 साल की जब तक मैं नहीं हो गई मैं वहीं पढ़ी. At which time started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. वो हमारी headmistress भी थी, मेरी टीचर थी वो जब तक मैं 6th क्लास में रही तब तक. In the sixth form. At the end of the year, we both were in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब साल ख़त्म हो गया तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि मैं वो स्कूल छोड़ रही थी, मुझे किसी और स्कूल में जाना था. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. दादी का ऑपरेशन हुआ बीमारी की वजह से और इसलिए मेरा जन्मदिन जब आया तो कुछ ज़्यादा अच्छे से वो नहीं मनाया गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर. कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ. एंड स्टिल लव हर. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलोंग with the rest. The 4 of us are still doing well. हम चारों कौन कौन? Anne Frank, Margot and their parents. We all were doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedications of my diary. Solemn का मतलब होता है डीप, मतलब 20 जून 1942 वो दिन था जब मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. ये एक डेडिकेशन है मेरी डायरी को बहुत ही गहराई से. तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट इस चैप्टर के फिनिश होते हैं. एक बच गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.